Hello students, this is a revision lecture. In today's lecture, we are going to have a quick revision of the chapter Motion of the Physics. Now what is motion? A body is said to be in motion if it changes its position continuously with respect to stationary object taken as reference point. तो देखिए, अगर हमको ये मालूम करना है कि क्या कोई बॉडी मोशन में है या मोशन में नहीं है, तो हमको एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मान लीजिए सड़क के साइड में कोई पोल है। अब पोल तो स्टेशनरी है, तो हमने इस पोल को एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब अगर किसी बॉडी की पोजीशन इस पोल की रिस्पेक्ट में चेंज होती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी मोशन में है। और अगर बॉडी की पोजीशन इस पोल या फिर इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है। Next is distance traveled and displacement. Now distance traveled, as you all know, it is the actual path length covered by a body when it is traveling. Now for example, in this case, a body first goes from A to B and then from B to C. So what is the actual path length? 5 kilometer plus 3 kilometer. So distance traveled by this body is equal to 8 kilometer. And what is the displacement? It is the shortest straight line path between initial point and final point. देखिए, जहाँ से मोशन शुरू हुआ उसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहाँ मोशन फिनिश हुआ उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को एक सीधी लाइन से जोड़ दीजिए। तो ये जो सीधी लाइन है ये आपको बताएगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑल्सो। तो हम ये कह सकते हैं पॉइंट सी इज इन ईस्ट ऑफ ए, तो 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो देखिए, इट हैज गॉट मैग्नीट्यूड 4 एंड डायरेक्शन दैट इज ईस्ट, so this is a vector quantity, so displacement is a vector quantity. Now in case of distance there is no specified direction. हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है जब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड मेजर करते हैं। हमको सिर्फ टोटल पाथ लेंथ जो है हमको उसका मालूम होना चाहिए वो कितनी है, और वही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाती है, जैसे कि इस केस में 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers equal distance in equal interval of time, no matter how small these interval may be. तो यानी अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है तो हम कहते हैं कि जो मोशन है बॉडी का वो यूनिफॉर्म मोशन है। अब देखिए, दिस इज अ ग्राफ डिस्टेंस टाइम। On y-axis we have taken distance, on x-axis we have taken time, so this is known as distance time graph. Now this is a straight line graph. So this means straight line means that the motion of the body is uniform, which means the body is covering equal distance in equal interval of time. देखिए, for this much interval distance covered is this much, for this much interval distance covered is this much. So you can see every interval of time distance covered is also equal. That is why we say the motion of the body is uniform. यानी ये बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रही है, तो हम कहते हैं कि जो इसका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी गेट अ कर्व ग्राफ लाइक दिस। सो दिस इज ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now speed, as you all know, speed is distance traveled upon time taken. Speed is denoted by v, distance traveled by s, and time by t, and its SI unit is meter per second. And there are other units also, for example kilometer per hour or centimeter per second, but SI unit is meter per second. Speed is a scalar quantity, which means it has magnitude only but no direction. Speed basically हमको बताती क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट को कितना तेजी से मूव कर रहा है, how fast a body is moving. Uniform speed. A body has uniform speed if it travels equal distances in equal interval of time, no matter how small these time intervals may be. यानी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है कि बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, तो हम कहते हैं कि जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है।
And if a body covers unequal distances in equal interval of time, then we say the speed is non-uniform. Our next topic is velocity. देखिए स्पीड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग, यानी कोई बॉडी कितनी तेजी से जा रही है. बट स्पीड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. So in order to know the position of a moving body, we should know in which direction the body is moving. So this gives us a new term known as velocity. Velocity is distance traveled in a given direction upon time taken. And distance traveled in a given direction is known as displacement. यानी जब हम distance किसी एक particular direction में travel करते हैं तो उसको नाम दिया गया है displacement upon time. Velocity is also a vector quantity, which means it has magnitude and it has direction. For example, 5 meter per second. For example, Mr. X travels 5 meter per second in north direction. So he has got magnitude, that is 5 meter per second, and direction. So that is why this statement is about the velocity. SI unit of velocity is meter per second. Speed and velocity are not always equal in magnitude. The magnitude of speed and velocity of a moving body is equal only if the body moves in a single straight line. तो अगर एक बॉडी बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है, तब तक जो हमारी स्पीड है और वेलोसिटी है उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा. लेकिन अगर बॉडी ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वो बदल जाएगा. Our next topic is acceleration. So acceleration is change in velocity upon time. यानी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होना टाइम के साथ. If there is no change in the velocity, that means body is moving with a constant speed. In that case acceleration will be zero. चेंज होने के लिए क्या जरूरी है? वेलोसिटी का बढ़ना या घटना, या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो. इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, डिक्रीज होगी तो डिसलरेशन बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. So a is equal to v minus u by t, where v is your final velocity, u is initial velocity, and t is time. SI unit is meter per second square, and it is also a vector quantity. Now uniform acceleration. If the velocity of a body increases by equal amounts in equal interval of time, then the acceleration is said to be uniform acceleration. तो देखिए एक्सेलरेशन का मतलब तो हुआ चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम. अगर ये वेलोसिटी इंक्रीज होती है इक्वल अमाउंट से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. नेक्स्ट इज रिटार्डेशन. रिटार्डेशन इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सेलरेशन. जैसा मैंने कहा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैन डिक्रीज ऑल्सो. सपोज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, in that case the acceleration is said to be negative acceleration or retardation or deceleration also. So if the velocity of a body decreases, then acceleration is negative. For example, when you apply brakes, the speed of your car, it begins to come down, it starts reducing. So your motion is retarded motion, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है. Equations of uniformly accelerated motion. There are three equations when body is uniformly accelerated. First is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square. Third is v square is equal to u square plus 2s, where a is acceleration, u is initial velocity, v is final velocity, t is time, and s is distance traveled. So first equation gives you velocity acquired by body in time t. यानी एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी आफ्टर टाइम टी, यानी अगर एक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है तो टी टाइम के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा. एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड, थर्ड इक्वेशन टेल्स यू द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस, यानी एस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. These are distance time graphs. This is distance on y-axis, on x-axis we have time, and this is a straight line. So if you have straight line, that means the speed is uniform.
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एज टाइम इज चेंजिंग डिस्टेंस इज चेंजिंग, सो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बोलते हैं इसको, स्पीड ही तो हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, सो इसको बोलते हैं स्लोप, दिस इज स्लोप। सो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये स्लोप है, स्लोप इसका कितना होगा इस लाइन का, वाई एक्सिस पर क्या है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पर क्या है टाइम, सो व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम ओ टू बी, डिस्टेंस चेंजेस फ्रॉम ओ टू सी। शुरुआत में ओरिजिन पर तो दोनों जीरो थे, टाइम इज जीरो, डिस्टेंस इज जीरो, एज टाइम इज चेंजिंग डिस्टेंस इज ऑल्सो चेंजिंग, फॉर टाइम ओ बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ सी, नाउ ओ सी इज इक्वल टू ए बी। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर है यानी कि ए बी अपॉन जो क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर है यानी ओ बी, तो स्पीड क्या होगी इस ग्राफ की, ए बी अपॉन ओ बी। देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन का जब आप स्लोप निकालेंगे तो वाई एक्सिस में कितना चेंज हुआ है उसको ऊपर लिख दीजिए, एक्स एक्सिस में कितना चेंज हुआ है वो नीचे लिख दीजिए, तो आपको स्लोप मिल जाएगा। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये स्लोप आपको स्पीड देने वाला है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा फिर हमको, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। दीज आर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब हम ग्राफ्स को कंसीडर करते हैं तो स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम का एक ही मतलब होता है। सो दिस इज योर फर्स्ट स्पीड टाइम, बिकॉज ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन स्पीड, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टाइम, तो इस ग्राफ को बोला स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, देखिए इस ग्राफ में टाइम तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है फ्रॉम ओ टू सी, देखिए यहां से हम चले टाइम इज चेंजिंग, बट क्या स्पीड चेंज हो रही है, नो स्पीड इज कांस्टेंट, यू कैन सी from O to C speed remains constant, that is at this level, so slope is zero. So what is the acceleration when a body is moving with constant speed, zero. So for this graph acceleration is zero because its slope is zero. Now what is distance traveled, as you all know distance traveled is speed into time, यानी अगर हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको डिस्टेंस मिल जाता है। अब इस ग्राफ में देखिए time changes from O to C, so time is OC, and speed remains constant OA CB, और कहीं पर भी देख लीजिए जो स्पीड है इसका मैग्नीट्यूड सेम ही है, सो OC इंटू OA इंटू OC, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, दिस इज बिकॉज स्पीड इज वॉट OA एंड टाइम इज वॉट OC, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमको डिस्टेंस मिल गया। बट if you look at this diagram it looks like this figure look likes a triangle, sorry rectangle, ये जो फिगर है ये आपको एक रेक्टेंगल के जैसी दिख रही है, तो अगर आप इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या है देखिए OC और ब्रेड्थ क्या है OA, तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तब भी हमको डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही मिलेगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एरिया अंडर द कर्व। ये जो लाइन देख रहे हैं आप ग्राफ वाली, इसके नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, तो अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है और अगर आप ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, वी गेट स्ट्रेट लाइन, तो लगातार आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीड चेंज हो रही है और इट इज चेंजिंग बाय इक्वल, इट इज इंक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन है दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा मैंने बताया था, अगर स्पीड टाइम ग्राफ यानी इस लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं तो हमको मिलती है एक्सेलरेशन। देखिए व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। अभी देखिए स्पीड कितना चेंज हुई, जब टाइम O से Q चेंज हुआ तो स्पीड कितना चेंज हुई, O से R चेंज हुई। अब देखिए OR इज इक्वल टू PQ, तो मैं OR की बजाय PQ भी लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, PQ अपॉन OQ, यानी जो y एक्सिस पर जो क्वांटिटी थी जो चेंज हुई, कितना चेंज हुई Q से P यानी QP, और टाइम कितना चेंज हुआ OQ। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड दैट इज PQ, इतनी चेंज हुई अपॉन चेंज इन टाइम OQ। ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन। अब देखिए ये एक्सेलरेशन इस ग्राफ की तो हमने कैलकुलेट कर ली, इस ग्राफ में नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर
चेंज ही नहीं हो रही थी स्पीड, सो जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है उसमें कोई चेंज ही नहीं, तो एक्सेलरेशन वॉज जीरो, तो हम स्लोप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते थे। नाउ व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? अब मैंने कहा कि जो आपका ग्राफ की लाइन है उसका एरिया अंडर द कर्व आप मेजर कर लीजिए। तो अगर स्पीड टाइम ग्राफ का ये एरिया अंडर द कर्व आप मेजर कर लेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा, हमेशा मिलेगा आपको। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड? 1/2, ये देखिए दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करके हम उसको हाफ कर दें तो हमको ये एरिया मिल जाएगा। सो 1/2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ORPQ, यानी ये पूरा जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाला और उसको हाफ कर दिया तो हमको इस ट्राइंगल का एरिया मिल गया, और ये जो ट्राइंगल का एरिया है दिस इज आर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो 1/2 इंटू OR इंटू OQ। स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट जीरो। अब देखिए इस ग्राफ में इनिशियल स्पीड इज जीरो, दिस इज ओरिजिन, एट दिस ओरिजिन टी इज जीरो, टी भी जीरो है, एंड स्पीड इज ऑल्सो जीरो। बट इन दिस केस एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट दिस पॉइंट टी इज जीरो, बट द स्पीड इज नॉट जीरो, स्पीड इज OB, so it means this body has some initial speed. So what is the distance traveled? तो देखिए आप इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी जैसे इसमें निकाला था। ये अगर आप निकाल लेंगे यानी दिस मच अपॉन दिस मच, सो दैट विल गिव यू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? इफ वी कैलकुलेट दिस एरिया अंडर, अगर इस लाइन के नीचे का एरिया हम लोग कैलकुलेट कर लें तो वो हमको डिस्टेंस देगा। सो दिस इज अ ट्रेपीजियम, दिस फिगर it looks like a trapezium. So what is the area of trapezium? Sum of parallel sides into height by 2. So what are parallel sides? OB plus AC multiplied by my height into OA by 2. So you calculate this value and this value gives you distance traveled by the body when it has some initial speed. तो देखिए हमने इन तीनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व मेजर किया है और हमको डिस्टेंस मिल गया, और अगर हमने स्लोप मेजर कर लिया हमको एक्सेलरेशन मिल गई। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the velocity of a body increases by unequal amount in equal interval of time, then its motion is said to be non-uniformly accelerated motion, and graph for non-uniform acceleration is always a curve. Now uniform circular motion, student, you see if a body moves on a circular path then its motion is known as circular motion. अगर कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है तो उस बॉडी का मोशन होगा सर्कुलर मोशन। अब अगर मान लीजिए उस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है और वो सर्कुलर पाथ के ऊपर चल रही है तो उसका मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करती है तो जो उसका मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। अब देखिए बच्चों, वेलोसिटी चेंज करने के दो तरीके हैं। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज यू ऑल नो, which means it has got magnitude and it has got direction. For example, 5 kilometer per hour, this is the magnitude in east, this is a statement, okay? So how can you change the velocity? So this is velocity na, it has got magnitude and it has got direction. So how can you change the velocity? Either you change this value magnitude, यानी इसको कम ज़्यादा कीजिए, और you change direction. When a body moves along a circular path, its direction is changing at every point. देखिए किसी भी सर्कुलर पॉइंट पे मान लीजिए बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है और आपको कहा गया बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर बॉडी की क्या डायरेक्शन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दीजिए। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट के ऊपर, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन पता करनी है बॉडी की, तो उस पॉइंट के ऊपर जस्ट टेंजेंट बना दीजिए। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉडी इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर बॉडी अपनी डायरेक्शन को बदल रही है, बावजूद इसके कि ये बॉडी सेम स्पीड से मूव कर रही है, ये हर पॉइंट के ऊपर अपनी डायरेक्शन बदल रही है। तो हमने क्या किया, स्पीड कांस्टेंट है सर्कुलर पाथ में, डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। सो दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। Acceleration is
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब हमने वेलोसिटी तो चेंज कर दी, कैसे? डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। This is an example. A stone is it is tied to a thread and it is rotated in a circular path with uniform speed, with constant speed. At this point, what is the direction of the stone? Tangent बनाए east direction. What is the direction of the stone at this point? South. Suppose this stone is released at this point. So in which direction stone will move? It will move in the east direction. If stone is released at this point, in which direction it will move? It will move in the south direction. तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर स्टोन को रिलीज करा तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। इट विल ऑलवेज मूव इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। आप कहीं पर भी इस स्टोन को रिलीज कर दीजिए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए अगर हम यहाँ रिलीज करते हैं तो किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। अ फोर्स इज नीडेड टू प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन। देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमको। अगर हमको एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखना है तो अ फोर्स इज नीडेड। द फोर्स विच इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही होगी। These are some assignment questions. Thank you.